तो आज पूरा हम लोग रे ऑप्टिक्स रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह. देन विल ट्राई टू सी दैट व्हाट आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी अकरिंग फॉर द नीट एग्जामिनेशन. और एक बहुत ज्यादा बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है स्टूडेंट्स में अंदर की, बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत ज्यादा फॉर्मुलेस है. देखो जो फॉर्मुलेस हम लोग डिराइव करते हैं रेगुलर क्लासेस में, वो लेवल के क्वेश्चंस अपने नीट में कभी नहीं पूछा. जैसा वेलोसिटीज होते हैं, इंक्लाइन पे होते हैं, नंबर ऑफ वगैरह पे होते हैं. प्लीज ट्राई टू म्यूट योरसेल्फ बेटा. ठीक है, चलो. तो हम लोग वो लेवल पूरा नहीं करेंगे बेटा, उससे टाइम वेस्ट के सिवा कुछ नहीं होता. सो हम लोग को जितना निपटार इंपॉर्टेंट है, जो आधे घंटे 1 घंटे में रिवीजन हो सकता है, और नीट के लिए जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस उसी को हम लोग एक बार जल्दी से लिख लेके उस पर हम लोग वर्किंग करना शुरू कर लेते हैं. अब उस पर ज्यादा डेप्थ में मत जाओ. वो शिफ्ट वगैरह के प्रॉब्लम्स वगैरह जो डेप्थ में पढ़ाया जाता है रेगुलर क्लासेस में, वो लेवल ऑफ प्रिपरेशन अभी हम लोग को करने की जरूरत नहीं है बेटा. इट इज वेस्ट ऑफ योर टाइम. ठीक है ना. ओके, स्टार्ट कर लेते हैं बेटा. सीधे फर्स्ट फॉर्मूला बेटा. ठीक है, हम खिलेंगे तो जरा समझो. चलो फर्स्ट फॉर्मूला देखो बेटा. रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. याद है सभी को? फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा? f is equals to your r by 2. r is your radius of your curvature, f is your focal length. उसके बाद आता है अपना मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला याद है सभी को? जल्दी से बोलो. व्हाट इज द मिरर फॉर्मूला बेटा? Mirror formula is nothing but equal to relation between object distance, image distance, and as well as of your focal length. 1 by u plus 1 by v is equals to your 1 by your r. U is your object distance, v is image distance, and r is your radius of your curvature. Sorry, it is nothing but focal length f. तो इसको मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ basically f, और that will be equal to your how much beta? 2 by your r. ठीक है ना. Then third one is nothing but of your angle of your incidence will be equal to your angle of your reflection. Okay, and fourth one is magnification का formula. Magnification must be equal to your size of your image divided by size of your object. So इसलिए मैं h2 divided by h1 लिख रहा हूँ बेटा. Or else this will be equal to your minus of your v by u. V is image distance, u is your object distance. That will be equal to your f divided by your f minus of your u. Or else that will be equal to your f minus of your v divided by your f part relation. Clear है? So this is the second, third, fourth important formula which you need to remember. उसके बाद आता है अपना Snell's law. Snell's law याद है सभी को? So what is the Snell's law बेटा? Refractive index of I sent it as a question. Angle of incidence. mu2 divided by your mu1, that will be equal to your sine of your I divided by your sine of your r. That means that will be equal to your v1 divided by your v2, or that will be equal to your, if I'm writing in terms of your wavelength, v is equal to n into your lambda, so this will be equal to your lambda 1 divided by your lambda 2. ठीक है ना बेटा? So I'm writing from this relation mu1 into your sine of your I will be equal to your mu2 into your sine of your r. So this is your Snell's law. Relation between your sine of your angle and of your sine of your angle of your refraction. Mu into sine I is equals to your mu2 into your sine of your r part relation. ठीक है. Refractive index का basic formula क्या होता है बेटा? Mu is equals to velocity of light in vacuum divided by velocity of light in a medium.
ठीक है. So velocity of light with respect to this is known as of your absolute refractive index with respect to vacuum. जब भी हम लोग बात करते हैं that is known as of your absolute refractive index particulation. Is it clear for everyone? इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ right now for this one. So this will be equal to your wavelength in your vacuum. Wavelength in your vacuum divided by wavelength in your medium. Isn't it? This is important relation हम लोग याद रख लो. That is very important for this one. Frequency वैसे भी same रहेगा. It will be getting cancelled for that one. Clear है? और एक छोटा सा point इसमें भी याद रख लेना. Refractive index of 2 with respect to your 1 is also written as of your 1 by refractive index of 1 with respect to your 2. Reciprocal. ठीक है. And even this one, refractive index of 2 with respect to 1 into refractive index of 3 with respect to 2 into refractive index of 1 with respect to 3 will always be equal to your 1. यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 2 विल बी इक्वल टू 1. अगर ये मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर तो ये कैसे लिख सकता हूँ 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 3. That means that will be equal to beta refractive index of your 3 with respect to your 1 divided by your refractive index of your 2 with respect to your 1. ठीक है ना. रेसिप्रोकल करके भी लिख सकता हूँ बेसिकली. नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसके अंदर जो हम लोग याद रखना है. नेक्स्ट वन इज नथिंग बट ऑफ योर लैटरल शिफ्ट. Lateral shift. Whenever a ray of light is going through a glass slab, it will shift by a certain distance. उसको हम लोग lateral shift बोलते हैं. Lateral shift का formula x is equals to thickness of the glass slab divided by your cos of your r into your sine of your I minus of your r. So this will be the lateral shift formula. Okay. उसके बाद one more important formula. Refractive index is equals to your. This will be equal to your real depth divided by your apparent depth. Mu is equals to your real depth divided by your apparent depth will be your apparent depth particulation. ठीक है ना. इसके ऊपर और ज्यादा केसेस है बेटा बट वो लेवल ऑफ डेप्थ अभी आप लोग को करने की जरूरत नहीं है. अगर आप लोग स्टार्टिंग कर रहे हो अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो थोड़ा एक बार रिवाइज कर लो. बट जहां तक मेरा आइडिया है लेकिन वो लेवल ऑफ द डेप्थ ऑफ द क्वेश्चन अभी पूछेगा नहीं क्योंकि रे ऑप्टिक्स में डायरेक्टली कभी भी वो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं. पूरे डेप्थ के अंदर के क्वेश्चन कभी नहीं पूछता इसके अंदर बेसिकली. उसके बाद होता है अपने रिलेशन बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. म्यू इज इक्वल्स टू योर 1 बाय योर sin c. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने के लिए करना चाहिए क्या बेटा. For TIR, for total internal reflection, your angle of incidence must be equal to your critical angle. Angle of incidence must be greater than or equal, so it must be greater than of your critical angle particulation. ठीक है ना. चलो उसके बाद और एक important relation आता है refraction from the curved surfaces. Refraction from curved surfaces. Okay. ये देखो बेटा. This will be equal to your mu2 by v minus of your mu1 by your u is equals to your mu2 minus mu1 divided by your r. If you are going from your rarer medium to your denser medium अगर जा रहे हो तो. If I am going from your denser medium to your rarer medium, just change the subscripts beta. In the place of 2 you keep the 1. So it is mu1 by your v will be equal to your mu2 by your u is equals to your mu1 minus of your mu2 divided by radius of curvature. Clear? बस इतना इससे याद रखना है. इसलिए थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स कर लो. दैट्स मोर देन इनफ फॉर दिस वन. उसके बाद आता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला. लेंस मेकर्स फॉर्मूला इस पे मैं प्रॉब्लम ज्यादा कराऊंगा बेटा सो दैट अपने को इस पे हाथ साफ हो जाए बेसिकली. और उतना ही लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स कराऊंगा जो अपने को नीट में पूछने की लेबिलिटी है, जो एक एक मिनट के अंदर करने के अलग अलग क्वेश्चंस अपने को जो पूछा जाता है ना वैसे वाले क्वेश्चंस हम लोग इस पे करेंगे. नेक्स्ट वन इज अबाउट योर लेंस मेकर्स फॉर्मूला. रिलेशन बिटवीन योर focal length, refractive index and radius of curvature. So 1 by f is equals to your mu minus 1 into your 1 by your r1 minus of your 1 by your r2. Radius of your curvature particle. Clear for everyone? Is it clear? चलो लेंस के लिए फॉर्मूला क्या है बेटा. लेंस फॉर्मूला क्या है जल्दी से बताओ जल्दी से. लेंस फॉर्मूला इज द रिलेशन बिटवीन देम 1 by f will be equal to your 1 by v minus 1 by u. वहां पर क्या था बेटा अपने को पॉजिटिव था मिरर्स में, यहाँ पर अपने को नेगेटिव है. 1 by f is equals to 1 by v minus of your 1 by u. और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगर इसमें हम लोग देख रहे हैं बेसिकली magnification will be equal to how much better. M is equals to your h2 divided by h1. That means size of image by size of your object. That will be equal to directly image distance by your object distance. That will be equal to your f by your f plus of your u. That will be equal to your f minus of v divided by your f. ये फॉर्मुलेस पूरे हाथ में होना है. अब आप डिराइव कर लेते बैठोगे ना तो उससे ज्यादा आपको यूज कुछ भी नहीं होगा. मेक श्योर ऑफ दैट वन.
These lenses are valued for both the convex and concave lenses बेटा, both for the real and as well as of your virtual. इतना याद रख लो. It is applicable for the thin lenses and it is valid for both the convex and concave lenses, and it is both for your real and as well as of your virtual images part. इसके अंदर थोड़े छोटे से पॉइंट्स याद रख लेना है. अगर मैग्नीट्यूड ऑफ योर मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 है मान के चलो, then that indicates that image is magnified. Image is magnified. Okay, if the magnitude of the magnification is lesser than 1, that means what? Image is diminished. Image is your diminished. Okay, and if I'm taking that magnification is equals to 1, that means image is of same size as that of your object. Image is of same size as the object. जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है इमेज का भी उतना ही हो जाता है. ये कंडीशंस अपने को याद रख के चलना बेसिकली. उसके बाद देखो 12th फॉर्मूला इसमें जो आता है पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ योर फोकल लेंथ, दैट विल बी इक्वल टू योर म्यू माइनस 1 इनटू योर 1 बाय योर r1 माइनस ऑफ योर 1 बाय योर r2. और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द यूनिट ऑफ दिस वन बेटा, इसका यूनिट कोई बोल सकता है क्या होगा? डायोप्टर, रिप्रेजेंटेड बाय लेटर कैपिटल. One diopter of the power of a lens means whose focal length is equals to 1 meter per definition. यानी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? मीटर इनवर्स. मीटर इनवर्स will be the basic unit part. The focal length of the converging lens is always positive बेटा. Focal length of your converging, that means convex lens. Focal length of your convex lens is always positive. Focal length of your concave lens. Concave lens is diverging lens. उसके लिए focal length कितना होता है? Negative. Okay, अगर lenses combined है basically, if the lenses are combined like this, n number of lenses are combined, इसका magnification m1 है, इसका m2 है, इसका m3 है, the net magnification will be equal to your m1 into your m2 into your m3 into your so on. जितने combination है उतने combination आप लेते चले जाओ. पर thin lenses अगर हम लोग इसको combine करते हैं बेटा, for your n thin lenses in contact, अगर इन तीन लेंसेस अगर कांटेक्ट है तो इफेक्टिव फोकल लेंथ कैसे निकालोगे? 1 by f will be equal to your 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by your f3 so on up to your 1 by yourfen. अगर इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है और इसका फोकल लेंथ f3 है. और इक्विवेलेंट पावर कितना हो जाएगा बेटा? इसका पावर हो जाएगा p is equals to p1 plus of your p2 plus of your p3 plus so on up to your pn part. ठीक है ना? इतने फॉर्मूले से अपने को बेसिक अपने दिमाग में याद रख के चलना है व्हेनेवर यू आर डूइंग द रिवीजन ऑफ योर रे ऑप्टिक्स चैप्टर. अब उसके बाद आता है प्रिज्म के थोड़े. हाँ बेटा, ये लेंथ ट्यूब की भी फॉर्मूले प्रॉब्लम याद रखना सर. क्या बोले? लेंथ ट्यूब. इसके ये लेंथ ट्यूब सर, लेंथ ट्यूब समझ में नहीं आ रहा मुझे. लॉन्गिट्यूडिनल के किसके बोल रहे हो बेटा? ठीक है चलो. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो शायद. हाँ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे बाद. चलो नेक्स्ट वन देखिए प्रिज्म्स के अंदर. प्रिज्म्स के अंदर फर्स्ट फॉर्मूला जो अपने को याद रखना है दैट इज नथिंग बट मीन डेविएशन का फॉर्मूला. बताओ मीन डेविएशन का फॉर्मूला. डाउ इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इनटू योर ए. बच्चे जनरली ये चैप्टर छोड़ के जाते हैं बेसिकली बिकॉज ऑफ द वेरी लेंथी, लेकिन लेंथी करना नहीं है. इसको जितना हो सका उतना कंपेयर करके बेसिक फॉर्मुलेस भी अपने हाथ में रख के जाए ना, तो ये बार का नीट का पेपर हम लोग करके आ सके. और पूरा डेप्थ में मत पढ़ो इस चैप्टर का, पढ़ने का टाइम भी नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ. वरना अगर मुझे ऑप्टिक्स पढ़ाना पड़ता तो शायद मैं 2 हफ्ते या 3 हफ्ते भी लगा दूं बेसिकली. लेकिन मैं आपको आधे घंटे के अंदर या मे भी 40 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन करा रहा हूँ. पूरे फॉर्मुले जहां पर भी लिखना है वो इतना ही पढ़ो जितना मैं फॉर्मुले से भी दे रहा हूँ. इससे हट को अपने को प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे फिलहाल के सिचुएशन में. डायरेक्टली फॉर्मुले बेस्ड होते हैं. अननेसेसरली डेप्थ में जाके बड़े बड़े क्वेश्चंस मत करो. और डिराइव्ड फॉर्मुले जो अपने डिराइव करते हैं जनरली क्लासेस में उस पर भी ज्यादा दिमाग मत लगाओ. ऑलरेडी आप कर चुके हो. अगर आप ऑलरेडी आपको 140 150 स्कोर आ रहा है देन देयर इज नो स्टॉप फॉर यू. अगर आपका 30 40 50 का स्कोर है देन इतना जितना मैं फॉर्मुलेस बता रहा हूँ उतना काफी कर लो. और जो प्रॉब्लम्स मैं आपको भेज रहा हूँ वही प्रॉब्लम्स 3-4 बार खत्म कर लो. दैट्स मोर देन इनफ बेसिकली. लेकिन रिपीटेडली करते रहना सो दैट द फॉर्मुले शुड बी रिकलेक्टेड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हॉल. मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को मॉडर्न फिजिक्स का पेपर भेजा लेकिन बहुत कम बच्चे, इतने बच्चे हैं ग्रुप में लेकिन एग्जाम लिखने की तो क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस ही नहीं है. सब पढ़ना तो सब पढ़ाते जाते रहते. दुनिया में और बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं मार्केट में, यूट्यूब में भी दुनिया के लोग और पढ़ा रहे हैं. तब पढ़ते जाओगे, सुनते जाओगे, पढ़ते जाओगे, अब करोगे कब?
एक से दो बार आप गिरोगे एग्जाम लिखोगे तो आप लोग का लेवल मालूम होगा ना। चलो भाई मॉडर्न फिजिक्स मैंने इतना पढ़ा था, इतना करा, हार्डली 4 जने या 6 जने मेरे को की शीट भेजे, कितना गुस्सा आना बोलो। बेसिकली मुझे क्या जरूरत है आप लोग की इतना मेहनत करके घंटा निकाल को मैं पढ़ाने की जरूरत नहीं, मेरे बिजी शेड्यूल में। आप लोग एग्जाम लिखना चाहे कम मार्क्स है ज्यादा मार्क्स है तो वो भी नहीं है बेसिकली, उसलिए मैं की भी नहीं दिया उसका, आप लोग की मर्जी है, जब आप लोग लिखना ही नहीं है तो मैं क्या करना है बस। चलो प्रिज्म के अंदर देखो जो फॉर्मूला लिखना है याद रखना है अपने को, मीन डिविएशन का फॉर्मूला डाउ इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इनटू ए। इसके अंदर और एक फॉर्मूला आता है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म का फॉर्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल्स टू साइन ऑफ योर ए प्लस ऑफ योर मीन डिविएशन डिवाइडेड बाय 2 divided by sin of your a by 2। very important very famous formula बेटा, इतना दिमाग में याद रख के चलना इस पे। the next one is about your angular dispersion represented by your dou v minus of your dou r, deviation of violet color minus deviation of red color, that will be equal to refractive index of violet color minus refractive index of red color into your angle of your prism। very important formula बेटा, इसको भी दिमाग में याद रख के चलना, डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बेसिकली। उसके बाद और एक फॉर्मूला आता है dispersive power represented by omega is equals to ratio of angular dispersion to the mean deviation, that is dou v minus of your dou r divided by your dou of your mean color generally हम लोग येलो कलर के लिए लेते हैं बेटा, so it is mu of your violet minus of your mu r divided by your mu minus of your okay। so dou की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, dou value will be equal to your dou v, जो mean color ले रहे हैं ना, so this will be equal to your dou v minus of your dou of your r divided by 2, that will give me the dou deviation, isn't it? So dou will be also equal to your how much better, deviation dou is also equal to your mu v plus of your mu r divided by your 2 part, ठीक है। चलो in case of refraction थ्रू प्रिज्म, इतना तो नॉलेज लग के चलता हूं कि आप लोग को प्रिज्म का शेप मालूम है। So when a ray of light is incident here, it undergoes a refraction. Then again from here, if I draw a normal, again it will get bent away from the normal part of relation. ऐसा, isn't it? So this one अगर मैं normal draw कर रहा हूँ, this is angle of incidence and this will be the angle of your emergence। यहाँ पर जो angles बन रहे हैं basically, this will be the angle of refraction R1, यहाँ पर R2 वगैरह और निकलता है basically। तो इसके अंदर हम लोग को refraction R1 plus of your R2 will be equal to your angle of prism। ये जो होती है, this is your angle of your prism part of relation। Then उसके बाद I1 plus of your I2, angle of incidence plus angle of your emergence will be equal to your A plus of your dou, isn't it? So for minimum deviation condition, for your dou is equals to your minimum deviation अगर ले रहे हैं, then इसके लिए I1 will be equal to your I2 and R1 will be equal to your R2। अगर deviation mean deviation के बराबर हो जाए, then I1 plus I1 will be equal to your I2 and R1 will be equal to your R2। Clear है? Is that clear? जी सर, Isn't it? जी सर। याद रख के चलना है basically। Please don't try to talk in middle बेटा। चलो ठीक है। So these are the basic formulas you need to remember beta, R1 plus R2 is equals to your A and I1 plus I2 is equals to your A plus of your D। Clear for everyone? यहाँ तक क्लियर हो गया सभी का? चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो बेटा जल्दी से इस पे। A convex lens has a focal length f. It is cut into two parts. It is cut into your two parts along a line perpendicular to the principal axis. Then focal length of each part is. I'll give the options. First option is your f. Second option is your 2f. Third option is your f by 2. And fourth option is nothing but of your null.
You can give me the answers in your chat box बेटा। मैं आप लोग को करके बताऊंगा सर, जल्दी कुछ भी नहीं है, आराम से करके बताऊंगा, टेंशन नहीं है। पहले लेंस के लिए फॉर्मूला लगाओ बेटा। कॉन्वेक्स लेंस मतलब क्या बेटा? ऐसा होगा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। तो एक्चुअली अगर ये होता तो यहाँ पर ये ऐसा सर्किल बनाता इसका, अगर ये पार्ट के लिए ये हो गया इस तरह से सर्किल, तो इसके लिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इसके लिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है C2। तो रे ऑफ लाइट जब इस तरह से आएगी इस पे ऐसा गिरेगी, तो रे ऑफ लाइट जो है ना इस सरफेस के लिए R1 यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग R1 बोलते हैं बेटा, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है बेटा इसको हम लोग R2 बोलते हैं। डायरेक्शन ऑफ लाइट में रहने की वजह से R1 को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और R2 को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन का झंझट हट गया सभी का। अब लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाओ बेटा। कॉन्वेक्स लेंस लगा रहे हैं तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, 1/f इज इक्वल्स टू योर म्यू माइनस 1 इंटू 1/your R1 माइनस ऑफ योर 1/your R2। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है क्या इक्वल्स। सो कॉन्वेक्स लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ योर f, इट इज कट इनटू टू पार्ट्स, यानी कुछ भी नहीं बोला तो विल बी टेकिंग एज अ फिर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। तो ये हो गया 1/f इज इक्वल्स टू योर म्यू माइनस 1 इंटू दिस वन इज 1/r माइनस दिस वन इज ऑल्सो माइनस ऑफ योर 1/r। तो ये कितना बन गया फोकल लेंथ फॉर द कॉन्वेक्स लेंस। सो इट इज 1/f विल बी इक्वल टू योर, दिस इज 1/f इज इक्वल्स टू योर, ये बना कितना बेटा, म्यू माइनस 1 इंटू योर 2/r। अब इसको हम लोग ने कट किया एट द सेंटर, तो जैसे हम लोग ने कट किया तो इसको फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा, दिट इज म्यू माइनस 1 इंटू दिस विल बी इक्वल टू, एक का तो इन्फिनिटी बन जाएगा और एक का फोकल लेंथ r बन गया, तो अब ये कितना बन जाएगा 1/your f डैश इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई r हो गया। तो अब f डैश बाई f कर लो तो कितना आ रहा है देखो राइट नो 2, तो न्यू फोकल लेंथ कितना बन गया मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ योर f। आई एम डिवाइडिंग द फर्स्ट इक्वेशन बाय योर सेकंड इक्वेशन, तो f डैश बाई f विल बी इक्वल टू 2, तो फोकल लेंथ कितना बन गया 2 टाइम्स ऑफ योर f, यानी सेकंड ऑप्शन बन गया आंसर। क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? चलो, यानी कटिंग का प्रॉब्लम जब आया तो ऐसा कर लेना, क्योंकि लेंस हम लोग ने कैसा कट किया अलोंग द एक्सिस इस तरह से, ये मैंने इस तरह से कट किया इसको, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस था, तो अपने को बनेगा लेंस ऐसा कुछ बनेगा, एक लेंस ऐसा बनेगा, एक लेंस ऐसा बनेगा। तो इसका फोकल लेंथ f डैश, इसका फोकल लेंथ f डैश, यानी इसका बन गया 2 टाइम्स ऑफ f और इसका भी बन गया 2 टाइम्स ऑफ। क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर? आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A convex lens of focal length f1 is put in contact with a concave lens of focal length f2. Okay, so the combination will behave like a converging lens, if options are very important. F1 is greater than f2, second one is f1 is equals to f2, third one is 1/f1 is greater than 1/f2, and fourth one is f1 is equals to 1/your f2। ध्यान से पढ़ के आंसर देना बेटा। मैं आप लोग को अनम्यूट को भी ऑप्शन दे देता हूं एक बार। अनम्यूट हो सकते हो ना आप लोग, देख लो एक बार। चलो वेरी, अब आंसर दो जल्दी इसका। ए कॉन्वेक्स लेंस, थर्ड ऑप्शन। क्या ऑप्शन आएगा बेटा जल्दी से बताओ। बताना। सी, वेरी गुड, थर्ड ऑप्शन आंसर आएगा। आया सभी को? कितने जने को आया आंसर? सी, पावर इज राइट नाउ फॉर मी व्हाट, P1 इज इक्वल्स टू 1/f1 एंड P2 और के लिए कौन सा हो जाएगा माइनस ऑफ 1/f2।
है नहीं, यानी माइनस ऑफ योर P2 विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी 1 by F2 ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी पावर ऑफ द कॉन्वेक्स इज ग्रेटर देन पावर ऑफ द कॉनकेव, P1 इज ग्रेटर देन P2. So or else I can write here 1 by your F1 will be greater than 1 by your F2 to behave as of your converging lens. To behave as of a converging lens, 1 by F1 must be greater than of your 1 by your F2. आया सभी को? Is that clear for everyone? जी सर. चलो, very good. नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी देना आंसर, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मेरे को टाइम लग रहा है क्वेश्चन लिखने के लिए, लेकिन जैसा मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आप लोग डाटा लिख लेते तो अंदाज करते रहना. द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए लाइट वेव इन ए मटेरियल इज 4 into 10 to the power of 14 hertz and wavelength is 5000 angstroms. The refractive index of material is चलो जल्दी बताओ. आई एम नॉट गिविंग द ऑप्शंस फॉर दिस वन, डायरेक्टली आप लोग आंसर बता सकते हो. $1.5. वेरी गुड. 1.5 आया सभी को? देखो पहले वाला फ्रीक्वेंसी क्या दिया, देखो बेटा, न्यू इज इक्वल्स टू 4 into 10 to the power of 14 hertz एंड वेवलेंथ कितना दे रखा है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 5000 एंगस्ट्रॉम्स. I can calculate the velocity of light in your medium will be equal to how much beta, n into your lambda or mu into your lambda. n value कितनी है, 4 into 10 to the power of 14 into wavelength is your 5000 angstroms. तो ये हो गया मेरे पास 4 into 10 to the power of your 14 into 5 into 10 to the power of, ये कितना बन जाएगा, -7 meters, क्योंकि 1 angstrom is 10 to the power of -10, 8 10 to the power of 3, 10 to the power of -7 आ गया, तो ये बन जाएगा कितना, 5 4 are 20, यानी 2 into 10 to the power of your 8 meter per second. Then, isn't it? So if I'm talking about the refractive index, mu is equals to velocity of light in your vacuum divided by velocity of light in medium. Velocity of light in vacuum is 3 into 10 to the power of 8. Velocity of light in medium कितना है बेटा, 2 into 10 to the power of 8. This one क्या है, 3 by 2. 3 by 2 is nothing but 1 point. आया सभी को? चलो, क्लियर है? चलो नेक्स्ट वन. Yes. A liquid is placed in a hollow prism. A liquid is placed in a hollow prism of angle 60 degrees. If angle of minimum deviation, if angle of your minimum deviation is 30 degrees, what is refractive index of liquid? बताओ जल्दी से. I'll give the options 1.41, 1.50, 1.65 and fourth one 1.95. 1.41. जल्दी से बताओ. How many of you are giving the answer? 1.41. Very good. 1.41 आ गया. Yes, sir. खाली लिखने की जरूरत है बेसिकली फॉर्मूला अपने को. फॉर्मूला क्या है बेटा, mu is equals to sin of your a plus of your dm divided by 2 divided by sin of your a by 2. So it is equals to sin, एंगल कितना दिया हुआ 60, ये कितना दिया हुआ 30 divided by 2 divided by sin 30, यानी that will be equal to how much बेटा, sin 60 plus 30 divided by 2, 90 divided by 2, 45 divided by sin 30. ठीक है, sin 45 कितना बेटा 1 by root 2, sin 30 कितना बेटा 1 by 2, यानी this will be 1 by root 2 into your 2 by 1. तो ये कितना बन जाएगा बेटा root 2, isn't it? So mu value is equals to root 2 मतलब कितना 1.41. So first option आ गया. कितना आसान था ने, ठीक है. चलो
Next one. A thin convergent glass. A thin convergent glass lens, refractive index of glass is 1.5, has a power of 5 diopter. When this lens is immersed in a liquid of refractive index mu1, it acts as a divergent lens of focal length 100 centimeters. The value of mu1 must be dash. I'll give the values for this one. First option is given as 4 by 3. Second option is given as 5 by 3. Third option is given as 4 by 5. And fourth option is given as of your 3 by 5. चलो करके बताओ. Five by three. 5 by 3. Second. Very good. Second option. आया? Again formula substitution नहीं चाहिए बेटा. A thin convergent glass has a power. You know that 1 by f is nothing but what beta? Power na? 1 by f is equals to mu minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. अभी जब आप वाटर में इमर्स करोगे तो रेडियस तो चेंज नहीं होगा, तो डिपेंड करेगा किस पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे. 1 by f is nothing but power ना, so power in air divided by power in liquid लिख लो. That is, this is refractive index of glass divided by refractive index of air minus 1 divided by, ये कितना हो जाएगा? refractive index of glass divided by refractive index of liquid minus 1, isn't it? So power कितना दे रखा है प्रॉब्लम में अपने को बेटा? प्रॉब्लम में power in air is given how much for me? 5 diopter ना, divided by power in liquid कितना दे रखा है बेटा? When this immersed in a liquid of refractive index, the divergence, the focal length is 100 centimeters. Focal length is 100 centimeters मतलब क्या? Power will be equal to your what? Reciprocal of the focal length. अगर सेंटीमीटर्स में ले रहे हो तो this will be equal to how much बेटा? 100 by f. That will be equal to how much for me? 1. और कौन सा है? बेसिकली when it is immersed, it is acting as divergent. तो आपको माइनस साइन लेना भूलना नहीं चाहिए. ये प्लस होगा तो this will be minus of 100 by 100. So that will be equal to minus 5. So this minus 5 is equals to refractive index of glass divided by refractive index of air minus 1 divided by refractive index of glass divided by refractive index of liquid minus 1. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, बस काफी है. सो इधर चले जाएगा. सो दिस माइनस 5 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड माइनस 1 इज इक्वल्स टू ग्लास डिवाइडेड बाय योर एयर माइनस ऑफ योर 1. तो कितना आ जाएगा बेटा? जल्दी से बताओ. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है? 1.5 है कि नहीं? तो कितना आ रहा है देखो ये. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड विल बी इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 1/5 इंटू ये कितना आ जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज नथिंग बट 1 माइनस ऑफ योर 1. आ गया? ये इधर ले लिया मैंने, बस ज्यादा कुछ नहीं, isn't it? तो ये कितना आ रहा है देखो बेटा? 1 माइनस 1/5 इंटू 1.5 माइनस 1 यानी 0.5. 0.5 मतलब कितना? 1 माइनस ऑफ 1/5 इंटू ये कितना हो जाएगा बेटा? 1/2 यानी दिस वन इज 1 माइनस 1/10. 1 माइनस 1/10 मतलब कितना? 9/10. ठीक है ना? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड कितना बन गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज 1.5 डिवाइडेड बाय 9 into your 10. So that is equals 1.5 is nothing but how much for me? 3/2 into this one is 1/9 into 10. So it is 3 ones are, this is 3 threes are, 2 ones are, this is 2 fives are. तो कितना बन गया? 5 3 5 आ गया? Is it clear? Is it clear? Yes, sir. चलो, very good.
A plano concave lens is made of glass of refractive index 1.5 and the radius of curvature of curved surface, radius of curvature of curved surface is 50 centimeters. The power of lens is चलो जल्दी से बताओ. First option is -1 diopter, next one is -0.2 diopter, third one is +1 diopter, and fourth one is +0.2 diopter. ऐसे ही आते क्वेश्चंस कल की दिन छोटे छोटे, बट ओनली थिंग इज फास्टनेस मैटर. -0.2 minus a plano concave lens. The plano concave lens, concave important है, concave lens is made of glass of refractive index 1.5 and radius of curvature of the curved surface is 50 centimeter. The power of the lens is आया. थर्टी सेकेंड्स हो गए. सेकंड ऑप्शन आ रहा. वेरी गुड. और किसको आया? किसी को भी नहीं. कॉनकेव के लिए पहले बताओ साइन कन्वेंशन. कॉनकेव लेंस कैसा दिखता है बेटा? ऐसा कुछ दिखाई देता है ना. मैंने वहां पर ड्रॉ नहीं किया इसलिए मैं प्रॉब्लम में आप लोगों को बता रहा हूँ. तो ये इसका हो जाता है यहाँ पर ऐसा, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है यहाँ पर, और इसके लिए यहाँ पर ऐसा रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये हो गया मेरे पास R2. साइन कन्वेंशन देखो बेटा, यहाँ से इसके लिए अगर मैं लिख रहा हूँ तो साइन कन्वेंशन इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट जब जा रहे हो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट. तो ऑल द डिस्टेंसेस आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल. तो यहाँ पर R1 क्या हो जाएगी बेटा? नेगेटिव हो जाएगी, और R2 विल बी इक्वल टू योर पॉजिटिव. ठीक है ना. तो प्लेनो बोला है, प्लेनो मतलब इसको हाफ कर लो ऐसा. तो ये हो गया मेरे पास एक प्लेन सरफेस इस तरह से, और ये हो गया इस तरह से. क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर. प्लेनो कॉनकेव लेंस यानी फर्स्ट प्लेन आना. फर्स्ट प्लेन आना मतलब क्या हो जाएगा? ये हो गया प्लेन, उसके बाद कॉनकेव, यानी इसको ऐसे लिखो दिया ऐसा. यानी R1 क्या हो गया यहाँ पर? इंफिनिटी, एंड R2 विल बी इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? पॉजिटिव. आ गया? इसको प्लेनो बोलते हैं, इसको नहीं बोलते हैं. पहले प्लेन सरफेस आना है. समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? तो अब लेंस फॉर्मूला डाल दो. 1/f इज इक्वल्स टू न्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. So refractive index is nothing but how much? 1.5 minus 1 into R1 is infinity, R2 will be positive, तो ये minus of your R2 का value हो गया R. ठीक है ना. So ये कितना आ रहा देखो, 1.5 minus 1 is nothing but how much for me? Minus of your 0.5 into this one will be equal to how much for me? R. R कितना दे रखा है प्रॉब्लम में अपने को, जल्दी से देखो. So R is given as how much? 150 centimeters. यानी 50 centimeters मतलब 100 by your 50 हो जाएगा, होता है ना. So ये वाला चले गया. This is nothing but 5 1s are 5 2s are. ठीक है ना. So this will be equal to how much for me? Minus of your, this is nothing but of your 1/2 into 2. 0.5 मतलब कितना बेटा? 1/2 ही ना. 5 बराबर ही लिखा है. ठीक है ना बेटा. कितना आ रहा? ऑप्शंस क्या दी? कितना आ रहा? 0.5 is 1/2. So this one and this one is gone. कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ क्या देखो. So this will be equal to how much for me? -1 diopter.
क्लियर है? Yes, sir. -1 ही आ रहा है ना? कुछ गलती की है कैलकुलेशन में, देख लो जल्दी से। आई डोंट नो। Plano concave lens is made up of refractive index 1.5 and radius of curvature of the curved surface is 50 centimeters. यानी 50 into 10 to the power of -2 होगा तो ऊपर चला जाएगा तो 100 by 50. So 5 1 से 5 2 से बराबर लिखा है -1.5. Sorry, -1 diopter. Clear है सभी को? Is it clear? Yes, sir. चलो, very good. Next question. A person can see clearly only up to a distance of 30 centimeters. Okay, so what we need to do, he wants to read a book placed at a distance of 50 centimeters from his eyes. The bracket, the book is Physics with Love by Lewin Walter. Okay, so what is the power of the lens he requires for his spectacles? चलो जल्दी से बताओ. I'll give the options for this one. First option is -2.0 diopter. Second one is -1.33 diopter. Third one is 1.67 diopter. And fourth one is +2.0 diopter. चलो, take 1 minute of your time and try to do. A person की जगह आप लीवन वाल्टर को भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. चलो जल्दी से करके बताओ. A person can see clearly up to a distance of 30 centimeter. He wants to read a book placed at a distance of 50 centimeter from his eye. The book is okay. That is not required. What is the power of the lens he required for his spectacles? रफ पेपर लेके कर सकते हो. 7:58 हो रहा है. 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको. -1.33. Second option. -1.3. वेरी गुड. -1.3 डायप्टर. देखो क्या क्या दे रखा है. डिस्टेंस दे रखा है बेटा. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कभी भी कितना होगा, फ्रॉम द पोल मेजर करोगे तो -50 सेंटीमीटर. और इमेज कहां पर पड़ रहा है मेरे पास, माइनस ऑफ योर 30 सेंटीमीटर. डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इज योर आई बोल रहा है. तो अब इसका हम लोग फोकल लेंथ निकालेंगे. सो एफ विल बी इक्वल टू हाउ मच. ठीक है ना. So what is the condition? A person can see clearly up to a distance of 30 centimeter. यानी image 30 centimeter पे पड़ रहा है. And he wants to read the book placed at a distance of 50 centimeter. And object distance is minus of 50 centimeter. I can use the lens formula beta. What is the lens formula? 1 by f is equals to 1 by v minus of 1 by u. So that is equals to 1 by, this is -30, minus of this one is minus of your 50. And this is minus of 1 by 30 plus of your 1 by 50. तो 1 by f की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, माइनस ऑफ योर 5 into 3 डिवाइडेड बाई 100. बताइए ना. तो कितना आ रहा है देखो ये. कितना आ रहा है बेटा, बराबर ही लिखा है मैंने. एलसीएम कितना आ रहा है देखो, हटाओ. 1 by f की वैल्यू कितनी आ रही है देखो, -1 by 30 plus 1 by 50. आया.
कितना आ रहा है बेटा? minus 7.5. माइनस 7.5. 1/f की वैल्यू बेटा, 1/f की वैल्यू 1/f की value 1 point something. कितना आया? जो वही टाइम निकाल रहा है 1/7.5 आया. 7.5 आया. 1/7.5 आ रहा, आई डोंट नो, इसलिए लिख रहा हूँ मैं 1 पॉइंट माइनस 1.7.1/7.5 इतना आया सभी को? क्लियर है? One by 18.5. कितना आ रहा देखो एलसीएम? 1 by 18.75. 1/18.75 18.75. कैसा आएगा बेटा? माइनस 1/30 प्लस 1/50 7.5 क्यों आ गया? 75 आएगा शायद, देखो एक बार। जी सर 75 आ रहा। 75 आएगा, सॉरी, ये 1/75 आएगा, यानी पावर विल बी इक्वल टू हाउ मच बेटा? माइनस ऑफ योर 100/75 आ जाएगा, isn't it? So 100/75 मतलब कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ योर 1.33 डायोप्टर, 1.33 डायोप्टर। क्लियर है? ये साइन कन्वेंशन समझ नहीं आया सर। -50 -30 क्या बोले? साइन कन्वेंशन, ये -50 और -30 Person can see clearly, देखो बेटा अभी क्या बोल रहा है, पर्सन कैन सी ओनली अप टू डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, यानी अगर आप पेपर पढ़ रहे हो, लेंस लगा रहे हो, तो आपके तरफ ही दिखाई देना कि वो क्या बोलते हैं, एक्सेस के उधर तरफ तो नहीं गिरेगा ना इमेज। जब आप स्पेक्टिकल्स लगा के पेपर पढ़ रहे हो तो इमेज कहाँ दिखाई देगा? ऊपर दिखाई दे रहा है ना बेटा? जी सर। यानी पोल से कहाँ दिखाई देगा? अगर ये अपना स्पेक्टिकल से, तो ये इसका प्रिंसिपल एक्सेस है, ये पोल है, तो ये अपने को ऑब्जेक्ट अगर 50 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट हो गए 50 सेंटीमीटर। पोल से मेजर कर रहे हो तो -50, और इसका इमेज कहीं पर यहाँ पर गिर रहा है बेसिकली, तो ये हो गया मेरे पास माइनस ऑफ 30 सेंटीमीटर। जी सर, आ गया उधर नहीं गिरेगा ना बेटा, लेंस के उधर गिरेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेंस की इधर तरफ ही गिर रहा है ऑफ द रे ऑफ लाइट। क्लियर है? जी सर, आ गया। वेरी गुड। Next question. The critical angle for water with respect to air is theta. The angular range in which a fish just below the water surface, can see the object outside is. First option is theta, second option is theta by 2, third option is 2 theta, fourth option is 3 theta by 2. एक सेकंड का आंसर, 21 सेकंड लगेगा ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। क्रिटिकल एंगल फॉर दी वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर इज थीटा। द एंगुलर रेंज पूछ रहा है इन विच अ फिश कैन सी द आउटर सरफेस। 2 theta. 2 थीटा। कहीं क्यों फिर इतना टाइम लगा रहे हो? ये अपना वाटर है, ये फिश है मान लो, ये इसका नॉर्मल, ये फिश की आई से रे ऑफ लाइट ऐसे गिरेगी, ये बना रहा है थीटा, तो ये हो गया इसका रिफ्रैक्शन, ये इस पे नॉर्मल, ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। तो उसी तरह से यहाँ पर भी रे इस तरह से गिरेगा, तो ये इसका नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पर हो गया ऐसा। So this is seeing the range of the birds in this range. यहाँ पर जो भी birds है देख रहा है, ये थीटा है, तो टोटल एंगल कितना बन गया? 2 थीटा। वन स्टेप आंसर है कि नहीं? जी सर। Next question. The wavelength of a monochromatic light
The wavelength of your monochromatic light is 5000 angstroms. Then its wave number is in meter inverse. चलो जल्दी से बताओ. 2 into 10 to the power of 6, 2 into 10 to the power of minus 6, 2 into 10 to the power of 7, and 2 into 10 to the power of 4. First option. कितने जनों का है फर्स्ट ऑप्शन? वेव नंबर मतलब क्या बेटा? What do you mean by wave number? वेव नंबर आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े हो, रेसिप्रोकल ऑफ योर वेवलेंथ. बस ये हो गया 1 by your 5000 एंगस्ट्रॉम्स. ये हो गया मेरे पास कितना? 5 थर्ड ऑप्शन. to the power of minus 10. 1/5 मतलब कितना बेटा? कितना आ रहा है देखो ये 1 by your 5 into 10 to the power of 3 into 10 to the power of minus 10. ये हो गया मेरे पास 1/5 into 10 to the power of minus 7. ठीक है ना? 1/5 मतलब कितना? 0.2. हाँ 0.2 divided by 10 to the power of minus 7. यानी this will become for me 0.2 into 10 to by the power 10 of into 7. 10 to the power of minus 7. आया? 10 to the power of तो कितना आ गया? Yes, 2 sir. into 10 to the 10 to power 10 to the power of of 6. मीटर इनवर्स. आ गया सभी को? Yes, sir. चलो वेरी गुड. Next question. The angle of minimum deviation for a prism of nu is equals to 1.5 is equal to the angle of prism. Is equal to your angle of prism. Then the angle of prism is in the bracket take cos 40 degrees is equals to 0.75. First option is 80 degree, second option is 62 degree, third option is 41 degree, fourth option is 18 degree. चलो जल्दी करके बताओ. The angle of minimum deviation for a prism of refractive index 1.5 is equal to the angle of your prism. हाँ ग्रेविटेशन भी पढ़ा दूंगा बेटा, कोई प्रॉब्लम. आ गया? छोटा सा मैथ्स लगेगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है. पहले कंडीशन लिख लो. पहले फॉर्मूला क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म के लिए? म्यू इज इक्वल्स टू फॉर्मूला बताओ. साइन ऑफ योर ए प्लस मिनिमम डेविएशन डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ योर ए बाय 2. प्रॉब्लम में क्या दिया? minimum deviation of a prism is equal to angle of prism, यानी डाउ m is equals to ये बोला उसने, यानी mu is equals to sin of your a plus a divided by 2 divided by sin of your a by 2. यानी कितना बनेगा? sin of your this is 2a divided by 2 divided by sin of your a by 2. 2 चले गया तो ये कितना आया मेरे पास? mu is equals to sin of your a divided by sin of your a by 2. अपने को मैथ्स में एक छोटा सा फॉर्मूला मालूम है, दैट इज साइन ऑफ योर ए कैन बी रिटन एज ऑफ योर 2 into your sin a by 2 into your cos of your a by 2.
तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख लूं तो क्या बन जाएगा 2 sin a का फॉर्मूला, तो म्यू इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा 2 इंटू साइन ऑफ योर a बाई 2 इंटू योर कॉस ऑफ योर a बाई 2। ध्यान में याद रख लो बेटा, अगर नहीं आ रहा तो इसको याद रख लो, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ योर a बाई 2। साइन ऑफ a बाई 2 साइन ऑफ a बाई 2 चले गया, तो यहाँ पर कितना आ गया बेटा, म्यू इज इक्वल्स टू 2 इंटू योर कॉस ऑफ योर a बाई 2। इज इट क्लियर? तो cos of your a by 2 कैसे लिखोगे बेटा, cos of your a by 2 is equals to your mu divided by 2। mu की वैल्यू 1.5 डिवाइडेड बाय 2, 1.5 मतलब कितना 3 by 2 into 2, यानी ये हो गया मेरे पास 3 by 4। सो a by 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, a by 2 will be equal to your how much 0.75 cos inverse 3/4 कितना 3/4 दे रखा है ना प्रॉब्लम में, एक मिनट देखो प्रॉब्लम में देखो 3/4 की वैल्यू कितनी आती है बेटा, cos of your 40 is 0.75, यानी 3/4 की वैल्यू कितनी 0.75 0.75, यानी cos of your a by 2 can be written as what बेटा, cos, 40 isn't it? यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, ये चले गया, ये चले गया, ये is equals to 40, 80 that will be equal to how much 80 डिग्री। ये एक अगर याद नहीं हो तो याद रख लो, ऐसा वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा और बेसिक क्वेश्चन है बेटा। तो आंसर कितना हो गया इसका 80। क्लियर है? आज जी आप सर। लोग रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स रिवाइज कर लीजिए बेटा, कल इस पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे 50 प्रॉब्लम। Okay, sir. ठीक है, क्लियर? ओके Yes, सर, sir. ओके, ओके, टेक केयर बेटा, बाय। जज़ाकल्लाह सर। Thank you, sir.